Okay, we will continue with what we were learning. Kindly concentrate, everyone. Over to screen sharing. Can you all? Hello, can you all see the screen? Yes, ma'am. Yeah, so last one was saying, many a student has passed. Many आने के समय both verb as well as noun should be singular. Student has. Okay, please take the screenshot fast. Yes, ma'am, taken. Done, ma'am. Similarly, this slide talks about when we have to use plural noun. Okay, so the previous slide we have seen when we have to use singular noun, and this slide we see when we have to use plural noun. Keep your mics on mute again. Who is that? Silent. See, हमने पिछले स्लाइड्स में बताया नीदर नॉर ईदर और के साथ हमेशा सिंगुलर होना है, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है. क्या है ट्विस्ट? Either or, neither nor are different numbers है तो the verb must be plural and the plural verb must be placed next to the plural subject. Either Amit or his parents have come to the school. पिछले स्लाइड में हमने बोला ईदर और है तो हमेशा सिंगुलर होना है, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है. क्या है? अमित और हिज पेरेंट्स है. सो अमित सिंगुलर है, पेरेंट्स प्लूरल है. सो दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, वन इज सिंगुलर वन इज प्लूरल. इससे आते हैं तो ईदर और में क्या करना है? वर्ब मस्ट बी प्लूरल. प्लूरल होना है वर्ब एंड दैट वर्ब हैज टू बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट के पास रखना है. Either Amit or his parents have come to the school. When nouns joined by not only but also the verb agrees with the second noun or pronoun. दूसरा है not only but also के साथ अगर join करते हैं तो second noun के अनुसार होता है verb. Not only the officer, देखो इधर two subject, officer है, soldiers है. Officer singular है, soldiers plural है. Not only the officer but also the soldiers were awarded. देखो where is plural. Why? Because it is किसके अनुसार है? soldiers which is plural, उसके अनुसार verb हमने चुना लिया were. A great many, हमने many डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में. ये क्या है? A great many. A great many, a large number of is always followed by a plural noun and a plural verb. पिछले स्लाइड में हमने number of देखा. number of में क्या था? noun plural था, verb singular था. many में noun और verb singular था. Anand, should I remove you from the class beta? Don't unnecessarily scroll or mark on the screen. A great many students have passed this year. A large number of girls were absent. ये देखो great many के साथ noun भी plural है, verb भी plural है. Students have. Large number of girls were. Large number of great many, इसके साथ हमेशा noun और verb plural रहेगा. One verb cannot act for both the clauses in a sentence if they differ in number, form, or voice. He has not and will not marry in the future. He has not married and will not marry in the future. ये देखो एक क्लोज में एक ही वर्ब से हम शेयर नहीं करते. He has not and will not marry नहीं बोलते. He has not married, उसके साथ has not के साथ भी बोलना है and will not marry in the future. So married and will not marry, दो times married बताना है tense के ऊपर. Okay, एक tense में शेयर नहीं करते. She is intelligent but her sister dull, ऐसे नहीं बोलते. She is intelligent but her sister is dull. देखो ये dull हम शेयर नहीं करते, फिर भी एक auxiliary verb चाहिए तो रखना पड़ेगा. Okay, what verb cannot act for both the clause? एक verb से
दोनों क्लोज में वर्क नहीं करते, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट वर्ब डालने हैं तो डालना पड़ेगा. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. Yes, ma'am. Done. Okay. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. I'm not saying anything, then how will you hear my avas? Just a second. All right. So with this, we have almost finished off with the rules. Now what we are going to do is we are going to practice the questions that is coming. So sometimes grammar is like maths. Unless and until you practice, you will not remember any of these rules. You cannot just learn these rules and write these rules and nobody is going to ask these rules. But why are we learning these rules? ये rule के अनुसार आप solve करना, learn करना है. Okay. So maximum you solve, that is where you learn. All right. So from today, we are going to start solving different types of questions based on all the rules we have learned so far. So from today, practice session starts. I'll share a screen now. Based on that screen, you need to share, solve the answers for that. Just a second. Yeah. First, I'll give you an easy one. An easy one I'll give, just to understand the tenses thing. Okay, can you all see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What you need to do is, it's a very simple, based on subject verb agreement type of question. The rhythm of the pounding waves is dash is slash r. You have to select from these verbs. Okay. Please write the answer and I will ask. Just complete this 15 questions fast. Once you finish, I'll start discussing. So 2 options are given in terms of verbs. Very, very easy. This is the basic. From here, we will start. Okay, first let me know whether you understood what is singular verb and plural verb. What you need to do is first take the screenshot for your future reference and in your note, write the answers only. Okay, that way we can save time. Take the screenshot for your future reference and in your notebook right now, just write. For example, put question number 1, is or are, whichever is your answer is, right. Question number 2, where was, whichever your answer is, you write. Okay, I hope you understood. Please do it fast. Are you doing, everyone? Yes. Kindly mute your mics. Please don't make me say it every time. Bhagavat, Ashok, Radhe, what is wrong with you?
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Beta, I have given you questions to solve. You didn't know what to do? आनंद, मैंने Yes, बोला ma'am. अभी आपको स्क्रीन देख रहे हैं क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रही है मैम। हाँ, that is the questions for you to solve. Solve it fast. ओके 15 questions. ओके मैम। ओके Advait Kale, which question are you doing, beta? Advait Kale, are you there? Yeah, ma'am. I'm here. Which question are you doing? I'm at 8. Okay. Om Suryavanshi, which question are you doing, beta? Ma'am, 12th. All right. Rohit Huge, Yes, ma'am. which question are you doing? Ma'am, 9th. Okay. Nishant, try to screen properly now. Nishant Tone, Yes, ma'am. which question are you doing? 9th. Okay.
वॉइस नहीं आ रही है हमको। अरे लगता है मैम चली गई। मैम डिस्कनेक्ट हो गई। मैम चली गई। चले गए लगता है मैम, टाइम भी हो गया। Hello student, wait a minute only. यस सर। Hello student, मॅम मी जाते तुम्हाला काही इंस्ट्रक्शन वगैरे देते का? नहीं सर। Wait only 5 minutes. When ma'am not coming, then I will continue lecture. Okay? सर हमारे ओके। एग्जाम कब है आप ये इसका की? तारीख बताई थी ना आपको ऋषिकेश सर ने, नहीं बताई अभी तक। 13 तारीख बताई थी, नहीं, नहीं बताई क्या? 13 तारीख को है सर। हाँ, बच्चे को मालूम होगा ना, किसी को पता है कि एक्सपीआई की एग्जाम कितनी देर? फरवरी। यस सर 13 तारीख को सुबह 8 बजे। यस 13 तारीख को है। सर ओके, सेंटर कहाँ पे है हमारे? सर आपको सेंटर कहाँ पे है हमारे? आपको हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट पर सेंटर दिखाएगा। ओके, सर जालने वाले के कहाँ पे रहते? देखो जब आपका हॉल टिकट आएगा ना, जानना वाले के सर हॉल टिकट आएगा तो उसी पर सभी लिखा होगा। ओके चलेगा तो आऊंगा। ओके ओके, वेट अ मिनट ओनली। चलो स्टूडेंट, मैम ज्वाइन नहीं हो रही है, अब हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट, यस सर। ओके। कल तो हमारे दोनों सेशन में सभी को समझ में आ गया कल की प्रॉब्लम्स वगैरह, क्या किसी को प्रॉब्लम था कुछ?
यस, मैथ का लेक्चर 9 बजे होगा आपका। ओके ओके, सभी को Yes, स्क्रीन दिखाई दे रही है? सभी को यस सर, यस। क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, फिर स्क्रीन दिखाई दे रही है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कौन रीड करता है फर्स्ट क्वेश्चन? Sir B, its magnitude is sufficient. What you say? I was not audible to you. Okay, please repeat again. Sir B, only magnitude is sufficient. Yes, B only magnitude is sufficient. क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? सर स्केलर में डायरेक्शन को मतलब ये नहीं करते, वो मॉडिफाई मतलब इवेल्युएट नहीं करते, पर वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को इवेल्युएट करके उसका वेक्टर आता है। यस, जो क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर कहते हैं, और जिस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों भी होते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर हमें स्केलर के बारे में पूछा है, तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसको क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कोई एग्जांपल बताओ मुझे स्केलर क्वांटिटी का, एग्जांपल बताओ। Mass. मास और मास इज स्केलर और वेक्टर। हेलो स्टूडेंट, मास और वेट दो क्वांटिटीज है, उसमें से कौन सी फिजिकल, कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, लेंथ, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ या फिर डिस्टेंस? डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। सिर्फ एक ही बंदा आंसर दे रहा है, बाकी के बंदे ने खाने नहीं खाया क्या आज दोपहर को? स्टूडेंट, नहीं सर, Yes, sir. बहुत सर्दी जुकाम है। सर्दी जुकाम है बाकी बच्चे को बहुत। ओके, कोई कोई बात नहीं। और कोरोना पॉजिटिव हो। कोविड पॉजिटिव कौन है? कोविड पॉजिटिव क्या वैक्सीनेशन किया? आनंद जोगदंड। ओके ओके। इन ऑर्डर डिस्क्राइब अ वेक्टर। अगर हमें वेक्टर को डिस्क्राइब करना होगा तो क्या क्या लगेगा हमें उसके लिए? वेक्टर, Option C. यस ऑप्शन Option सी। C. आनंद, आनंद जोतगड़े, तुम बताओ मुझे इसका आंसर। हेलो आनंद, सर मैं बताओ। बताओ बताओ। सर थोड़ा ऑप्शन बी, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यहाँ पर हमें वेक्टर पूछा है, नॉट अ स्केलर। सर both are essential sir. यस, बोथ आर एसेंशियल। अगर यहाँ पर ऐसे दिया होता सिर्फ स्केलर, स्केलर के बारे में पूछा होता तो फिर क्या था? ओनली इट्स मैग्नीट्यूड इज एसेंशियल। ओके, आ गया समझ में बच्चों? हाँ सर। ओके। Yes, sir. आउट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी द स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी बताइए। Speed. यस, स्पीड। ओके, स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज रहता है? स्पीड का फॉर्मूला बताओ मुझे। Velocity vector है। यस, वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड का क्या स्पीड फॉर्मूला? इज इक्वल टू d अपॉन t और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस यस, ओके।
आ गया समझ में? इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है? स्पीड। ओके, और इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। सर सारे बाकी के बाकी के सारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनको अगर हमें मेजर करना पड़ेगा तो हमें उसको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज द वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट। Displacement. यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में Yes, लिख आ दो रहा है मुझको। सर, आ रहा है सर। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा वो चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? यूनिफॉर्म। और नीचे फोर स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आएगा फिर? सर सर डी। सी डी। सर सी द Yes. स्पीड एंड द डायरेक्शन D. ऑफ द मोशन सी रिमेन सी सर, Yes. its ऑप्शन speed changes but ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख रहे हैं। क्या वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। ओके, समझ गए सभी को? सर डी आएगा ना फिर? नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड तो चेंज हो सकती है ना, तो फिर डी में स्पीड चेंज लिखा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पीड नहीं चेंज हो सकती। ओके, अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो स्पीड नहीं चेंज हो सकती। यस, ऑप्शन सी आएगा, इसका डी नहीं आएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट, यस इसका सर ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। yes sir. ओके, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. if an object is moving with uniform velocity, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो Sir, स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा रॉन्ग है। if an object is moving with uniform velocity having constant, उस अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? चेंज ऑफ स्पीड। चेंज ऑफ स्पीड। सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यस, ऑप्शन डी। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेंगे। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर गोइंग टू करेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्म से वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा ना, कांस्टेंट ही रहेगी ना। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर रहेगी तो चेंज ही होगी नहीं ना वेलोसिटी, तो फिर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अब देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी जो स्पीड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रहता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, उस पर डिपेंड रहता है। कंफ्यूज हो रहे बहुत? हाँ सर। तो थोड़ा सा मुझे कुछ राइटिंग करके लाना पड़ेगा तभी आप समझेंगे। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेगा पहले। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, फिर हम ये वेलोसिटी का पार्ट लेंगे। इसलिए मैंने कल के सेशन में ये पार्ट नहीं लिया था, ये पार्ट स्किप कर दिया था। मुझे लगा था आपको बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप इस पार्ट में। ओके, तो हम इस सेशन
किसके लिए ब्रेक चाहिए? खाना खाने के लिए ब्रेक चाहिए? सर वो तो 9 बजे। कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर आज ब्रेक नहीं किया। देखो हम इस क्वेश्चन पूरे जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से अपने आप को कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को ले लूंगा। ओके चलेगा ना स्टूडेंट? यस सर। ओके हाँ सर। Yes, सर sir. सर 7 का ए होगा ना? 7 हम कैलकुलेशन करेंगे फिर बताएंगे आपको। ओके ठीक है सर। A and B are two opposite vectors। यहाँ पर एक वर्ड नहीं दिया, क्या? opposite vectors। ओके A and B are two opposite vectors with the same magnitude in order that vector should be। अपोजिट लिखा है तो फिर 180 डिग्री। फिर क्या आएगा? 180। ओके 180 डिग्री। यस 180। अगर यहाँ पर सेम डायरेक्शन दी होगी, सेम वेक्टर दी होगी तो फिर क्या था? 0। यस यही इसमें वर्ड मिसिंग है, यानी कि इसको इस वजह से उसका 0 पे आंसर निकल सकता था और 180। ओके और ऑप्शन में दोनों भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट वेक्टर और सेम वेक्टर। ओके समजते सगळ्यांना? नाही नुसते हा करताय? नहीं सर समझते ना। ओके ओके देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ A is 2 meter and that of B is 3 meter। The magnitude of resultant A and B is 5 meter। The angle between A and B must be। सबके पास नोटबुक और पेन है ना, तो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। ओके देखो A कितना है? 2 मीटर, B कितना है? 3 मीटर और रिजल्टेंट कितना है? 5 मीटर। कितने आ रहा है आंसर? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा दिया है 2 मीटर और 3 मीटर, रिजल्टेंट कितना दिया है? 5 मीटर। यानी कि अब अगर हम दोनों की एडिशन करेंगे सर 45 डिग्री। 45 डिग्री। यस यस ओके मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह का कैलकुलेशन है। ओके देखो वही क्वेश्चन है हमारा। ए कितना यहाँ पर दिया? वेक्टर ए कितना है? 2 मीटर और बी कितना है? 3 मीटर और दोनों का रिजल्टेंट कितना बन रहा था? 5 मीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें फिर? पाइथागोरस थ्योरम मालूम है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सभी को? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस थीटा। ओके रिजल्टेंट दिया है हमें 5। ओके हमने सभी वैल्यू पुट कर दी। ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह 3 रख दिया और ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। हमें क्या निकलना है? थीटा निकलना है ना, थीटा फाइंड आउट करना है हमें फाइनली। ओके करो इसका कैलकुलेशन और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा फिर। 0 डिग्री। कैलकुलेशन किया कि नीचे देखकर बोल रहे हो? कैलकुलेशन किया ना? सर हमने वहाँ पे फॉर्मूले में 2ab cos थीटा क्यों लिया? कॉस थीटा हमें क्या निकलना है? एंगल फाइंड आउट करना है। क्या? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा लेना पड़ेगा, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके अगर यहाँ पर हमें एंगल नहीं फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें पता होता कि ये जो दोनों वेक्टर है परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते, अगर हमें इस बात का पता होता तो सिर्फ हम
जो ट्वाइस ए बी लेते, cos थीटा नहीं लेते, ओके। लेकिन हमें एंगल पता है कि उन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए हमें cos थीटा लेना पड़ा, ओके। सर पर अगर 90 repeat डिग्री करो होगा ना तो सर। वो cos थीटा 2ab cos थीटा 0 ही हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि हाँ, जीरो ही होता है, cos जीरो ही होता है, जीरो ही होता है, cos थीटा इक्वल टू जीरो ही आता है। सर ये रिपीट करो ना। क्वेश्चन देखा था ना आपने, क्या था? वेक्टर ए कितना था? 2 मीटर, वेक्टर बी 3 मीटर, दोनों का रिजल्टेंट कितना था? रिजल्टेंट कितना था दोनों वेक्टर का? 5 मीटर। 5 मीटर। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसमें हमें पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है, ओके। आर की जगह हमने 5 रख दिया, ए की जगह 2, बी की जगह 3 और ट्वाइस ए बी cos थीटा, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने 5 का स्क्वायर कर लिया, 2 का भी स्क्वायर कर लिया, 3 का भी स्क्वायर कर लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 into 2 4, 4 into 3 12 cos थीटा, ओके। 4 + 9 कितने होते हैं हमारे? 13, ओके। 13 को हमने 25 से 25 में से 30 रिड्यूस कर दिया, 12 बच गया। 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा फिर? 1, ओके। cos 1, cos 1 किसकी वैल्यू होती है? cos 1 cos थीटा, 0 डिग्री, cos 0। यस, cos 0 की वैल्यू होती है, तो फिर हमारा आंसर क्या आया? 0 डिग्री। सर उधर cos थीटा क्यों यूज किया? हेलो, हेलो सर, वो cos थीटा क्यों यूज किया उधर आपने? हमें आप एंगल, आखिरी में 2ab + cos थीटा क्यों लिखा है? हमें वहां पर एंगल फाइंड आउट करने ना, जो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल रहेगा उस एंगल को फाइंड आउट करने ना, इसलिए हमने cos थीटा लिया वहां पे, ओके।